Good evening friends. बैठ जाइए सब लोग. Good evening. Thank you so much for coming. Thank you so much for waiting. बैठ जाइए दोस्तों. इवेंट शुरू कर. सर के लिए round of applause. ये भूत प्रेत बेताल ये सब क्या इवेंट शुरू कर भाई. बैठे इवेंट. We have one of the finest gems of Indian cinema. Can we hear it? छतुना दो तालियों से. Mr. Paresh Rawal, everybody. थैंक यू. इवेंट शुरू. Yes sir. मैं बस स्टार्ट ही करने वाला था. Thank you so much sir. बाबूराव आपने आप यहाँ पे आ ही गए हो और मुझे लग रहा है कि आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाह रहे थे. हाँ. मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था कि इवेंट शुरू नहीं कर तेरा मुंह खोल दो. काम दिखा. पर तू बेताल नहीं है. नहीं सर, मैं तो कॉमेडियन हूँ. अरे यार इतनी भयंकर कॉमेडी करता है, इससे अच्छा हो तो तू बेताल होता है यार. That is true sir. मैं शो के बाद immediately जाके बेताल बनता हूँ. Very good. But now that I have you here, can I ask you 2 quick questions? Please. All the fans want to know. You have played so many roles in so many genres for so many years. You have done politicians, heroes, villains. You have done gods. So when Madam came to you and said, "We want you to be in a बेताल movie," तो मैं समझता हूँ कि भूत प्रेत की पिक्चर में आर्टिस्ट को कुछ करने का होता है. और जैसे कहते हैं कि आप जंगल में जा रहे हो, सामने से शेर आ जाए, क्या करोगे? भैया जो करना है शेर को करना है, मैं क्या करूँगा? तो भूत प्रेत की पिक्चर में भूत को करने का होता है, लेकिन मैंने सोचा इसकी कहानी करने का. इसी वजह से मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ. प्रोवाइडेड उसके अंदर एक जबरदस्त स्टार कास्ट भी है, कहानी जबरदस्त है, प्रोड्यूसर जबरदस्त है, डायरेक्टर जबरदस्त है. ये मौका तो मैं छोड़ता ही नहीं. That's why. Amazing sir, amazing. Also ट्रेलर देख के बेताल से ज्यादा डरा बने आप लग रहे हो. अच्छा. क्योंकि आप सवाल बहुत अच्छे पूछ रहे हो उसमें. My second question is, ये फिल्म में बाकी सब लोग. Thank you so much sir. You can please join the rest of the stars with us. Thank you so much. Thank you. खाली है कि ऑक्यूपाइड है? We have a beautiful seat for you. परेश रावल जी के लिए तालियां बजाइए दोस्तों. He has done everything there is. Amazing. Round of applause दोस्तों, तालियां बजाइए. The audience is on their feet. What a warm welcome. Awesome. All right. We have, everybody talks about a six-pack. Amazing. The audience on their feet. What an amazing night this is. Everybody talks about six-pack. I'm going to invite our next star who can kill you with just one look into your soul. His acting prowess is no secret. From being Faisal Khan to now a Betal in Thama, he has shown silence can be scarier than any jump scare. He's the man who can play a gangster or a guru or a guitar and still make it look effortless. जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो चुड़ैल भी रेस्पेक्टफुली अपना पैर सीधा कर लेती है. With a huge round of applause, please welcome the one and only Nawazuddin Siddiqui दोस्तों, तालियों के साथ. And of course we have already met him, and now we have too many supernatural creatures on the stage. So can you please have the only normal human and the biggest gem in Indian cinema, Paresh Rawal sir के लिए दोबारा तालियां हो जाए. Awesome. Our next guest, he's going to co-host this segment with me. He has taken horror genre from. So you guys can take your seats, guys. You don't have to stand. You can take your seats around. Say. Okay, round of applause. They're taking seats, guys. Come on the stage. The next guest is someone who has taken the horror genre from the big screen straight into YouTube's feed. He actually started his channel because of Street, and today is India's biggest horror creator. Please welcome the man who made millions scream on all this. Divay Agarwal, Aka Khuni Monday. Khuni Monday के लिए तालियां बजाइए दोस्तों. Awesome. We have some questions for the cast and crew. I will let Divya start with the questions. Thank you so much guys for joining us on stage on this great evening. Guys, how did you like the footage?
बिस्वा ने मुझे को-होस्ट करने के लिए पैनल बुला तो लिया है, लेकिन अभी ये जो मैंने फुटेज देखी उसे देखने के बाद एकदम स्पेलबाउंड हो गया हूँ मैं। मतलब इट इज लुकिंग लाइक अ टोटल दिवाली धमाका। क्यों था ना जोरदार धमाका। जी हमने मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में इतने सारे कैरेक्टर्स देख लिए हैं। स्त्री देख ली है, भेड़िया देख लिया है, सरकटा आ गया है, मुंजा आ गया है, और अब हमने इस फुटेज में जो देखा, हमने देखा कि एक बेताल की अलग दुनिया है जो जंगलों में कहीं छुपी हुई है। एक्सपोर्ट भी हुआ है और थोड़ा हमें कहे बगैर लिया भी गया है. So when we started looking and building these folklore, like Munja is the second most famous legend in Konkan. Stree Chanderi se hai, but actually the legend is from Konkan. Bhediya Varuna. सबसे पहले मैं आप लोगों से देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ट्रैफिक था। आप तो दिल्ली में ट्रैफिक जानते ही हैं, उसकी वजह से मैं फंस गया। लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ मेरी तरफ से, राजपाल की तरफ से और नामुका की तरफ से। आप राजपाल जी को तो जानते ही हैं, इनको बच्चा सारे बच्चे जानते हैं। मेरे साथ मेरी हीरोइन राधिका जो कि चंडीगढ़ से है और आज हमारे साथ आई है। आप सबको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को इतना प्यार देखा इस वक्त, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं राजपाल जी से कहूँगा कुछ बोलने के लिए। मैंने 25 साल में इतने प्रमोशन किए, लेकिन ऐसा अजूबा प्रमोशन आज तक नहीं देखा। नोएडा ग्रेटर नोएडा तो आने का 50 बार मौका मिला, लेकिन ये नजारा कभी नहीं देखा। भाई उधर नहीं होगा, नीचे गिर जाता भी। आज इतने सारे क्राउड, इतने सारे लोग आए हैं आपको देखने के लिए, आपको कैसा लग रहा है? अबे ये है कौन? अबे ओ भाई ओ किसी का धक्का मत मारिए। यहाँ लड़कियाँ हैं, बच्चे हैं, हाथ छोड़ के बिकती है, धक्का मत मारिए। इंडिया से करवा देंगे को। बहुत ही फेवरेट गाना है, I'm sure आप लोगों को भी
तो कहना दूर जाएंगे। क्या ख्याल है, जाने से पहले ये गाना गाओ। ओके, आई प्रॉमिस यू, जाने से पहले हम सब। ओह अच्छा ये थैंक गॉड फाइनली वी हैव कम होम। जनाब, हाँ बोलो। यही मेरा घर है। हाँ घर आ गया ना मेरा भी। हाँ 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 ये मेरी मिसेस है ना, हाँ, जिगरा जो है ना वो सो रहा है, शोर मत मचाना। नहीं मैं कहाँ शोर मचा रहा हूँ। जनाब, हाँ यही है मेरी मिसेस नफीसा। डॉक्टर है ना फोन पे जिगरा के लिए। सलाम। हाँ नमस्ते नमस्ते। तशरीफ लाइए। जी जरूर, चलो भाई घर में चलते हैं। जी अब बाहर के जूते, घर के जूते देखी ना वो काली डालती है ना, तो उसको दिक्कत होती है सफाई करने में। आई एम रियली सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि जूते घर के बाहर उतारने हैं। कोई बात नहीं, आपको कैसे मालूम होगा? आपके शहरों में कहाँ तहसील होती है? इलाज कर दो जनाब। जनाब ये ठीक हो जाएगा जनाब। इसको शहर में नहीं ले जाना पड़ेगा। हमारे जिगरा ठीक बताओ हो जाएगा। वाकई से पकड़े इसको हटाओ अरे ऐसे जनाब को क्या हो गया? वो सामान लेने गए होंगे ना अपना, इसको देखने के लिए। कौन सा सामान? डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना बच्चे को, वो सामान लेने गए होंगे। अरे जनाब जा रहे हैं, रोको इन्हें। वो देखता हूँ। बात तो सुनो। मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहना। धीरे धीरे, मेरे पास नहीं आना। धीरे बोलो। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? टैक्सी क्या क्या प्लान बना के लेके आया मुझे? अल्लाह की कसम, कोई मेरे प्लान। साथ चालाकी नहीं कर। आपकी और मेरी कुल मिलाकर 23 उंगलियां हैं। तो डॉक्टर से पूछता है कि अरे भाई तुम्हारे दोनों हाथों में क्या सिर्फ 5 ही उंगलियां हैं? बोलो, डॉक्टर की कुछ अच्छा हो गया। तो आप अब बिल्कुल घबराइए नहीं। अब आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा और कोई ठीक हो जाएगा? हाँ मतलब बीमार है ना ये? मतलब हाँ क्या बीमारी? जी बीमारी का कोई नाम तो होगा? हाँ है ना। अभी अभी आया टैक्सी लेकर। कौन? ये डॉक्टर जनाब है, हमारे जिगरा का इलाज करने आए हैं। पता है आधे कश्मीरी है ये, आधे बंगाली। हाँ जिगरा की तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग हो ना इसकी हिफाजत के लिए। रात हो गई है, सो जाओ। जा 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 यहाँ से। कहा जा? अरे तुम्हें नहीं, इशरत को बोल रही हो, तुम्हारे पीछे खड़ी है। जनाब ये इशरत है, इसने कुएं में कूद के खुदकुशी कर दी थी, तब से ये कुएं में ही रहती है। अरे पगली अब तो बिस्तर पर सोया कर, क्या बस में भीगी हुई फिर रही है? देख इशरत, बात तो नफीसा एकदम सही कह रही है। तूने क्या हालत बना रखी है बर्फ में अपने। हाँ तू कुएं में ही सो जाना। क्या बात कर रहे हो? कुएं में कैसे सोई थी वो? कुआं यहाँ से तो गर्म होगा ना। तू भी जिद्दी, वो भी जिद्दी, सोने देना कुएं में, तेरे को क्या लेना है? हाँ हाँ सो जा कुएं में। नीचे देख के उतर, ये तो गिर जाएगी। चल खुदा हाफिज़, सुबह मिलते हैं। दूर से शहर से आया, मैंने आपके सामने इलाज किया ना। पहले बुखार चेक किया, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर तो आपको मालूम है ना कि इंजेक्शन से सारे इलाज हो जाते हैं। बच्चे का इलाज हो चुका, बच्चा परफेक्टली फाइन है। मनोज बाजपेयी।
तुम्हारी जी के संग झंडे साहब आपको बहुत याद करेंगे और झंडे साहब के साथ आपको एक और व्यक्ति याद रहेगा और उस व्यक्ति का रियल में भले ही नाम हो चांस होगा बट स्क्रीन पर नाम है कार्ल भोजराज बट उसके डिजिटल लाइव वर्जन है उनका नाम है लेडीज एंड जेंटलमैन एक्टर जेम्स सार्क। जी आ रहा है थोड़ा बढ़ा सकते हैं फर्स्टली मनोज थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट द जागरण फिल्म फेस्टिवल। उससे ज्यादा जब आप दिल्ली शहर में आते हैं मनोज जब आप शहर में आते हैं बिकॉज you stayed here for many years. What is the first thing जो आपको ध्यान में आता है कि भाई अब दिल्ली जाना हो तो ये तो जरूर करूंगा ये यहाँ जरूर जाऊंगा? Is there something that always you remember कि भाई ये तो करना ही है? नहीं मंडी हाउस उसी के आसपास गुजरा है। रामजस जाना चाहता हूँ लेकिन वो एकदम नॉर्थ साइड में है तो वहाँ पर ज्यादा जाना नहीं हो पाता है। But Mandi House is one place where you feel like going because this is where I feel that I was constructed brick by brick by so and जागरण के जो ओनर थे उनसे हम मिले थे अपने शूल के प्राइवेट स्क्रीनिंग पे तो उनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि मैं इस फिल्म को लेकर के बहुत सारे शहर में जाना चाहता हूँ और मैं हमेशा दावा करता हूँ कि सिटी टू सिटी प्रमोशन जो है मैंने शुरू किया था तो उस दौरान में रील होते थे कैन तो वो कैन का पूरा एक एल्युमिनियम का बक्से में उसको रखा जाता था तो मैं अकेले लेकर के लखनऊ कानपुर पटना जयपुर देन हैदराबाद इस समय में जो क्रेज रहा फ्रॉम द फर्स्ट डे सत्या टू 1 वीक टू ग्रो पर शूल का पहले दिन से काफी उसका हमने जो है उसकी बातें जो है लोगों में फैला दी थी। शूल के बारे में लोग ऑलरेडी जागरूक हो चुके थे। जागरण का मेरा संबंध वहां से शुरू हुआ बिकॉज दैट द ओनर ऑफ जागरण इन कानपुर ही readily agreed once he saw the film. Totally imagine. मनोज जब हम पिछली बार मिले थे आपकी मनोज बाजपेयी फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर पर एंड दैट वाज हमने कॉन्वर्सेशन किया था वो फिल्म था डिस्पैच राइट वो भी मुंबई की कहानी वहां पे हम बाल काटते गए छोटे से और छोटा फिर मैंने कहा यार अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसको शेव कर ले तो हम लोग एक ये भी था कि अनुराग ने कहा था कि ये मेरे लिए मेरी कमर्शियल फिल्म है गैंग्स ऑफ वासेपुर बट विद कैरेक्टर्स विद अ स्टोरी तो मैंने कहा ठीक है एक एंटीथेसिस ऑफ हीरो भी तो होना चाहिए ना अगर तुम्हारी कमर्शियल फिल्म है ये तो ये मेरा कमर्शियल हीरो है जो गंजा रहता है देन गंजा भी है और एंड देन अनुराग वेंट वन स्टेप अहेड देन आप कितनी भी अच्छी फिल्म बना लें पर अगर दिखाने का जगह ना हो तो फिर वो वही की वही रह जाती है and in this case Inspector Zende made it to Netflix so only fair I invite on stage Ruchika Kapoor Sheikh from Netflix please. और चाहे जो भी फिल्म हो और जहां भी चल रही हो अगर उसमें कहानी ढंग की नहीं हो तो कौन देखेगा एंड देन देयर आर सम स्टोरीज जो और सम पीपल इन फैक्ट
जिनके साथ ऐसी ऐसी चीजें घटती हैं कि वो फिल्म के लिए ही लायक होती हैं, ऑफकोर्स किताब के लिए लायक होती है। डिजिटल रियल 90 के आसपास 80-90 के आसपास तो ऐसे रोल हैं जहाँ पर सच में खून और पसीना लगा है सबको करने में, काफी रात नींदें हराम हुई हैं। तो अब मेरे लिए क्या करना बड़ा मुश्किल है। आई ऑलवेज लीव इट टू यू नो टू ऑल ऑफ यू। जो भी आपका फेवरेट है वो मेरा फेवरेट है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट यू नो। आई हैव गिवन अ लॉट टू दोज कैरेक्टर्स, लॉट। इतने सैक्रिफाइसेस, इतना अटेंशन, इतना पैशन, मतलब समटाइम few of them really cost me my health because you know those were very difficult characters। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको जो पसंद हो आप बोलिए, मैं उसको हाँ बोलूँगा। बैंडेड क्वीन जब मैं मान सिंह का रोल कर रहा था तो मान सिंह मेरे साथ ही रहते थे, मेरे ही कमरे में सोते थे वो भी। जब उनको पता चला कि मैं चंपारण से हूँ और मैं उस गांव से हूँ तो उन्होंने कहा था कि अरे बाबा बड़ा को क्या जगह है, वहां तो पकड़ के अंगुली पे काट देते हैं और हम तो अपने पकड़ को अपने पास रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं, मोटा करते हैं। तो आप भी जहाँ से हैं कुछ उसी तरह के इलाके से मैं भी आया हूँ। मेरा ये था कि लॉट ऑफ स्टोरीज आई हैव, लॉट ऑफ कैरेक्टर्स आई हैव। मेरे पास कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कई सारी स्टोरीज हैं, कई सारे ह्यूमरस डायलॉग्स भी हैं। हाँ। तो मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं एक लाइन में आपका सब जवाब दे दूंगा। ये सवाल हम लोग भी करते थे अपने समय में, लेकिन उस समय डिजिटल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। आज के समय में मैं भोपाल जब गया था तो मुझे एक लड़का मिला जिसने कि 6 एपिसोड का पूरी सीरीज बनाई थी उसने, और वो सीरीज बना करके वो जहाँ जहाँ मोनेटाइज करने के लिए उसने यूट्यूब पे डाला। मैं कितने सारे लोगों से अलग अलग जगह शूटिंग करते हैं तो वहाँ बच्चे आते हैं जिन्होंने साथ में मिल करके एक्चुअली जैसे जुगाड़ कहते हैं ना वैसा करके उन्होंने फिल्में तक बनाई है डिजिटली। तो आज की तारीख में खड़े हो गए आप अपने डायलॉग एक मिनट एक सवाल पूछ लूँ यार, खबर कितने बनानी होगी। जिन सर एक सवाल आपसे और मनोज जी एक सवाल आपसे। एक महान वैज्ञानिक के चरित्र को बहुत राजी है, मेरा पैसा का मतलब एक्टर के साथ आप अपना एक डायलॉग बोल दीजिए, फेवरेट बोल दीजिए। जब मैं सर प्लीज सर मेरी गैंग्स ऑफ वासेपुर तब का दफन हो गया। प्लीज सर मैं आपको सुनाता हूँ इसी फिल्म का। पांडु कहते हैं लोग, मुंबई का पांडु, लेकिन इनको नहीं पता है कि जिस दिन मुंबई का पांडु अपनी पे आ गया तो अच्छो का पांडु बना दिया। मनोज वाजपेयी के समय माइक्रोफोन खाना चाहिए भाई। Guys, please come this side. I request all of you to please maintain some distance from the stage. मनोज वाजपेयी जी के समय माइक्रोफोन खाना चाहिए। फोटो लेने हैं तो